Students, now the next question is, let a is equal to r minus 3 and b is equal to r minus 1. Consider the function f such that a tends to b is defined by f of x is equal to x minus 2 over x minus 3. is f is 1 1 और on to. हमारे पास जो है यहाँ पे जो a फंक्शन सॉरी सेट a है उसमें क्या है -3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है और b जो है 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो a टू b मैपिंग जो डिफ़ाइन की गई है उसको डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास फंक्शन है x माइनस 2 और x माइनस 3 पे डिफ़ाइन है। इसको हमने चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे 1 1 ऑन टू? सो लेट्स सी, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a से बिलोंग करते हैं। तो a किसके बराबर है? a इज़ r माइनस 3। तो हमने x1 और x2 दो एलिमेंट्स लिए हैं जो a से बिलोंग करते हैं और सच दैट f ऑफ x1 क्या बन जाएगा? f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 है x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 क्या बन जाएगा यहाँ पे? x2 माइनस 2 ओवर x2 minus 3. This condition will be arrived here. Now cross multiplying there, x1 minus 2 will be multiplied with x2 minus 3 and x2 minus 2 will be multiplying with x1 minus 3. Now after multiplying we will get x1 into x2 minus thrice of x1 minus twice of x2 plus 6 is equal to x2 into x1 minus thrice of x2 minus twice of x1, or here is minus minus plus 6. This condition is arriving now. Then positive 6 lying on both sides, it will be cancelled. This implies or x1 into x2 or x2 minus x1 both are also cancelled, and the remaining is minus of 3x1 minus 2x2 is equal to minus of 3x2 minus of 2x1. This condition is arriving here. Now after that, both the terms which are containing x1 taking on the one side, it becomes minus 3x1, this goes to there, plus 2x1, and similarly minus 3x2 and 2x2 goes to there, it becomes positive 2x2. Then after calculation it will be minus of x1 is equal to minus of x2. Minus minus cancelled both sides. This implies x1 is equal to x2. हमारे पास जो कंडीशन आई x1 इज इक्वल टू x2 आती है। हमने क्या लिया था? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो स्टार्टिंग में भी हमने इसको इक्वल लिया और लास्ट में भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। जब x1 इक्वल टू x2 आया तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1। तो f क्या हो गया? फंक्शन इज़ 1 1। नाउ फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू विच एलिमेंट, विच सेट इट बिलोंग्स टू b. b क्या है? r माइनस 1, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ f. इसको कोडोमेन ऑफ f भी कहते हैं। देन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री, तो वी आर राइटिंग एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई. From this, cross multiplying there, this implies x minus 2 y of x minus 3, and here is x minus 2 is equal to xy minus of 3y. Taking the terms which are containing x on one side, that is x minus xy, or the terms containing y taking on another side, 3y plus 2, and here is x 1 minus y is equal to minus 3y plus 2, and this implies x becomes, we can also write 2 minus 3y over 1 minus y. This term will be coming to us, this is the value of x. Then one thing we note that here, what is that, this is x. Now if we are taking this, x will be equal to 3 sometimes. If we take x equal to 3, then अगर x 3 के बराबर लेते हैं तो 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस y. Then cross multiplying, this is 3 into 1 minus y is equal to 2 minus 3y. 3 minus 3y is equal to 2 minus 3y. Both the terms 3 by 3y are cancelled now and 3 equal to 2. तो यहाँ से रिजल्ट किसके बराबर है, 3 2 के बराबर है. क्या कभी 3 2 के इक्वल हो सकता है, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल. तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है जब, सो हम क्या कह सकते हैं, जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, हमने x को 3 लिया था, बट हमने यहाँ पे क्या, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि r के वो सारे रियल नंबर्स किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के, वो किसके एलिमेंट्स हैं, सेट A के एलिमेंट्स हैं. तो इट मीन्स x अगर 3 लिया तो 3 के साथ रिजल्ट पॉसिबल नहीं आया. तो इट मीन्स जो ये x की वैल्यू है ये किसको बिलोंग करती है, सेट A को बिलोंग करती है. तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, सो दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस y किससे बिलोंग करता है, A से. किसको छोड़ के, इंस्पेक्ट ऑफ 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू A एक्सेप्ट 3, कि 3 यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड है. तो ये किसके एलिमेंट्स हुए, सेट A के एलिमेंट्स को बिलोंग करता है. तो जब ये बिलोंग करता है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस, इसको यहाँ फिल करेंगे एफ ऑफ एक्स में. दिस इज एफ ऑफ 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस y. एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 2 ओवर x माइनस 3. यहाँ पे x के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर देंगे. तो नाउ इट बिकम्स 2 माइनस 3y माइनस 2 ओवर अगेन 2 माइनस 3y, सॉरी, x की वैल्यू है 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस y, और माइनस 2 अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज
एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया था हमें, एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री। इसमें एक्स के प्लेस पे हम ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो एक्स माइनस टू बाई इसको फिल किया ओवर वन माइनस वाई और माइनस टू इज़ दिस। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर टू माइनस थ्री बाई ओवर वन माइनस वाई और माइनस ऑफ थ्री इज़ हेयर। तो बाय कैलकुलेशन वी गेट टू माइनस थ्री बाई minus of 2 1 minus y and over 1 minus y. Second term 2 minus 3y minus of 3 1 minus y, or same the denominator is 1 minus y. Both the terms containing denominator same, that will be cancelled out. What is remaining here? It becomes 2 minus 3y minus 2 then plus 2y over 2 minus 3y minus 3 plus 3y. This term is coming from this whole expression when we are calculating. So then here is positive 2 negative 2 cancel out, here is positive 3 or minus 3y cancel out. This is f of 2 minus 3y over 1 minus y के लिए था। इसके लिए रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, 2y पॉजिटिव है 3y नेगेटिव, देन माइनस ऑफ y ओवर अगेन माइनस ऑफ 1 1 1 सॉरी नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, दिस इज़ y। रिजल्ट इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, y। और ये सारी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू थी, x की, x माइनस टू माइनस थ्री वाई और 1 माइनस वाई। तो f ऑफ x में हमने इसको पुट किया था, दिस इज़ f ऑफ x। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, f ऑफ x किसके बराबर आ गया, y के इक्वल। तो जब f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया तो f इज़ ऑन टू, तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि f इज़ ऑन टू। नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में एक और चीज़ उसने पूछी थी, f इनवर्स 7 निकालना है। f इनवर्स 7 की क्या वैल्यू होगी, तो f इनवर्स 7 कैसे निकालेंगे, हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास y आया था, तो यहाँ से हमने f इनवर्स बनाना है, तो f इनवर्स क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग टू अस। देन f इनवर्स 7 निकालना है, तो f इनवर्स 7 इज इक्वल टू x, x क्या है 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस y। तो इसको ये x f इनवर्स 7 किसके बराबर है, x, यहाँ x के प्लेस पे y के प्लेस पे आपने 7 पुट करना है, तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 माइनस 3 इंटू 7 ओवर 1 माइनस 7, तो इट बिकम्स 2 माइनस 21 over minus 6 and this expression is minus 19 over minus 6, minus minus cancel out and this becomes 19 over 6. Then the value of f inverse 7 is 19 over 6. This is all about regarding this question. Now we are moving to the next.